apart from Google platform, we are having several different type of assessment tools as well. And among them, the most popular is Moodle. And in our university, Aligarh Muslim University has set up its own Moodle platform. तो वो भी हम लोग यूज करते हैं. वी यूज डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ असेसमेंट और किस तरह का क्लासेस लेना. जैसे अभी वी आर एक्चुअली कैटरिंग ऑलमोस्ट 3,000 स्टूडेंट्स in a particular vocational courses. Since Aligarh Muslim University has introduced National Education Policy NEP 2020, right? And currently we are running a second batch of FIUP. तो उसमें बहुत सारे कुछ अगर आपको मालूम हो कि NEP actually promotes interdisciplinary type of education. So a student can opt other stream subject as well. So let's say if a student is studying in social science, so he or she can opt science subjects as well. तो अभी क्या हुआ कि जैसे अब हम लोग ने एक वोकेशनल में कोर्स फ्लोट किया कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड. सो ऑलमोस्ट 3,000 स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो अब 3,000 के लिए ऑब्वियसली फिजिकल मोड में पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ रिसोर्स क्रंच एंड different type of resources that are actually needed for running this particular course. तो फिर हम लोगों ने इसे ऑनलाइन पे मूव किया. ठीक है. एंड टू रन दैट पर्टिकुलर कोर्स अब हम लोगों ने दो प्लेटफॉर्म यूज किया. द वन that is for online classes, that is WebEx, and similarly on the same time we are using Moodle as well. ठीक है. तो Moodle में कुछ फीचर्स अच्छे हैं. जैसे असेसमेंट का बहुत अच्छा फीचर्स है. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ असेसमेंट्स, वेदर इट इज असाइनमेंट टाइप ऑफ असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट है. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ. आई विल ट्राई टू शो यू सम डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट दैट आर अवेलेबल इन Moodle. तो कुछ मैं आपको शो करूंगा. Although you might not have access to Moodle account, अगर जो AMU से हैं तो most probably उनके पास अकाउंट होगा. Otherwise, those who are in some other organization, they might not have account of Moodle. लेकिन तब भी मैं I will try to show you how we can go through Moodle. The next tool that I will discuss here, obviously, Google-based platform. और since I am discussing about assessment, तो उस पे जो हमारे पास गूगल फॉर्म बेस्ड कैसे हम क्यूज बना सकते हैं और कैसे हम पॉलिंग करवा सकते हैं एंड हाउ कैन वी यूज गूगल फॉर्म टू सबमिट असाइनमेंट्स एज वेल. ठीक है. सो ऑल दिस विल डिस्कस इन today's discussion. So my voice is clear to all of you. I want to have this class very interactive class. ठीक है. Dual mode में मैं सोच रहा हूँ कि ये class हो so that we can interact with each other. Yes, any one of you? My voice is properly audible to all of you? Yes, sir, audible. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. So, what are actually assessment tools and why we use assessment tools? So, assessment tool जो है that actually aid in assessing and evaluating student learning. है ना. आप assess करना चाहते हैं कि कोई टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं. ठीक है. या आप ये चाहते हैं कि सपोज यू आर गोइंग टू टीच ए पर्टिकुलर टॉपिक and you want the student understanding of that particular topic, कि अभी उनका क्या understanding है before going to this course. ठीक है. before going to this particular topic or this particular unit. तो फिर भी आप उसको you can utilize assessment tools. ठीक है.
कि आपके अंदर से आपने कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं 5-10, आपने वो फ्लोट कर दिए, बच्चों का रिस्पॉन्स आया, तब आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई, ठीक है। You can also collect feedback about a particular topic that you have covered, कि आपने जो कवर किया उसका फीडबैक कैसा है, ठीक है। जनरली हम लोग असेसमेंट में एक तो स्टूडेंट का असेसमेंट करते ही है, राइट। वी यूज टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, लेकिन एज अ टीचर वी कैन ऑल्सो असेस आवर सेल्फ एज वेल यूजिंग feedback mechanism, right? So we can have that type of mechanism, right? तो उसमें स्पेशली जब हम लोग फीडबैक लेते हैं at end of semester we used to take feedbacks. तो फीडबैक्स अब हम लोग गूगल फॉर्म के थ्रू फीडबैक लेते हैं सारे कोर्सेज का। ये हमारे यहाँ हम लोग डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस में ये फॉलो करते हैं, और स्पेशली जो नैक में है वो स्टूडेंट फीडबैक, टीचर्स फीडबैक, एलुमनाई फीडबैक, तो अच्छे जो एम्प्लॉयर का फीडबैक, ये सारा मैटर करता है। तो एक तो वो है कि कंपल्शन है, ठीक है, वहां है, लेकिन वी कैन ऑल्सो एसेस आवर आवर वे ऑफ टीचिंग थ्रू द फीडबैक। तो मैं खास करके मैं जब फीडबैक मैं एक एक फीडबैक पढ़ता हूँ, जैसे मैं हर सेमेस्टर में ऑलमोस्ट 2 और 3 कोर्सेज हमारे पास होते हैं, तो जो फीडबैक आता है फिर मैं एक एक फीडबैक को देखता हूँ। तो उसमें जो एक तो ओवरऑल जो चेक करते हैं बच्चे की भाई सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो 80% ने कहा कि हाँ कंप्लीट हुआ, टीचर टाइमली आते कि नहीं, पूरा फॉर्मेट है दैट वी आर फॉलोइंग हियर इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फीडबैक में लास्ट में कमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, रिमार्क्स एंड कमेंट्स। तो उस रिमार्क्स एंड कमेंट्स में स्टूडेंट्स यूज्ड टू गिव very useful comments, very useful remarks that we can incorporate in our teaching, ठीक है। अब ये जैसे उन्होंने कहा कि सर अगर आप इसको किसी टूल के थ्रू, किसी सिमुलेशन के थ्रू अगर आप इसको समझाएं तो और ज्यादा अच्छा होगा, तो एक यूजफुल कमेंट था, ठीक है। दैट वी कैन असेस आवर सेल्फ एज वेल, है ना। तो असेसमेंट टूल्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए है, असेसमेंट टूल्स कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड by the teachers to assess their own way of teaching, right? It also provides different option to assess student beyond the traditional exam. तो बहुत तरह का आप इस assessment tool के through आप student को जज कर सकते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग को आप जज कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसमें, and we'll discuss certain options in today's discussion. असेसमेंट टूल कैन बी यूज्ड टू हेल्प सपोर्ट एक्टिव लर्निंग। अच्छा, ये सबसे अच्छा ये होता है कि एक्टिव लर्निंग, इट मींस कि अब आप क्लास ले रहे हैं तो आपने अभी वेरी रिसेंटली ए कंपनी हैज विजिटेड हियर इन आवर डिपार्टमेंट। अच्छा, उनका कुछ लेक्चर था एंड लेक्चर के बाद सिर्फ उन्हें इंटरेक्ट करना था। वी आर एक्चुअली हियर रनिंग एक प्रोग्राम एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो वी यूज्ड टू कॉल डिफरेंट कंपनीज टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग में इंटरेक्ट करने से पहले दे हैव फ्लोटेड ए क्यूज, ठीक है, वो 10 मिनट का उन्होंने क्यूज फ्लोट किया, और वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पर उन्होंने क्यूज बनाया था। देयर आर सेवरल पेड प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली, जिसको यूज करके आप बहुत सारे इंटरेक्टिव क्यूजेस बना सकते हैं। तो जैसे कैनवास है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, लेकिन वो पेड है एक्चुअली। वो फ्री अकाउंट में आप 2-3 ही पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि वो अब सारे स्टूडेंट को उन्होंने फ्लोट किया था। फ्लोट कैसे किया, सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्यूआर कोड डिस्प्ले कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया, सो ऑटोमेटिकली एक क्यूज हैज ओपन इन देयर मोबाइल, ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने अपना नाम पहले इंटर किया, अब फिर क्यूज स्टार्ट हो गया। तो जब भी वो प्रेस कर रहे थे तो वो जो हर एक क्वेश्चन का 20 सेकंड उन्होंने लिमिट लगाया था। तो 20 सेकंड पे वो हमारा एक बड़े से स्क्रीन पर जो भी लेक्चर, जैसे हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है, तो वी आर हैविंग ए बिग स्क्रीन देयर,
एंड तो इन्होंने जो कंपनी ने जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वो जो आंसर था, आंसर नहीं बल्कि जो कॉमन डिस्प्ले था उन्होंने उस पे बिग स्क्रीन पे रखा। तो जो भी आंसर कर रहे थे तो हर आंसर पे कौन टॉप पे हुआ, किसका आंसर सबसे पहले आया, वो सारा नाम डिस्प्ले हो रहा था। सो sorry, so students are actually enjoyed that session। ठीक है, तो वो जो भी है 8-10 सेकंड का जो तो they have enjoyed that session for that particular moment of time। तो उन्होंने एक तरह से आप ये समझिए कि फिर एक स्टूडेंट जो है उस पूरे सेशन में एक्टिव रहे। ठीक है, तो ये एक there are different ways actually through which you can motivate your students, you can interact with your student, and you can you can encourage your students for a active learner। ठीक है, इसी तरह से आप इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज से भी। आप बहुत सारे ग्रुप में एक साथ आप इस तरह का कुछ पोलिंग करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं that you can explore in assessment tools। Then there are different types of assessment। Yes, yes, ma'am. Shifa, ma'am, do you have any question? Shifa, ma'am, could you please? Yes, thank you. Could you please mute yourself, Shifa, ma'am? Okay. So, किस तरह का हम असेसमेंट टूल्स यूज कर सकते हैं और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स। तो एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ाया तो आपने उस टॉपिक पे एक क्यूज करवा दिया। ठीक है, और कुछ आपने एक क्लास डिस्कशन कर लिया, एक पॉलिंग करके क्लास डिस्कशन कर लिया। तो इस तरह का जो है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं गूगल फॉर्म। अगेन यू कैन यूज गूगल फॉर्म। कुछ आपने कुछ एक टॉपिक पढ़ाया, अब एक उसके बाद 5 मिनट का आपने गूगल फॉर्म पे आपने क्वेश्चन दे दिया, तो वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया कि आपके यानी स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दैट वाज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट जो है समेटिव असेसमेंट है, यानी आप एक यूनिट के बाद या कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप जो एक पूरा असेसमेंट करना चाहते हैं स्टूडेंट का, एक यूनिट के बाद या 2 यूनिट के बाद या फिर पूरा आप सारे यूनिट्स पढ़ाने के बाद जो फाइनल एग्जाम हुआ या प्रोजेक्ट है, तो उस तरह का भी असेसमेंट आप करते हैं। एंड वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ असेसमेंट, राइट? फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग असेसमेंट टूल्स एज वेल। तो अगेन यू कैन मूव ऑन टू Moodle, गूगल फॉर्म एंड सो ऑन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी और प्लेटफॉर्म का, दैट यू कैन यूज। सो देन वी आर हैविंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स एज वेल, कि अगर कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या वीकनेस है स्टूडेंट की और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, नॉलेज क्या है, यानी कि प्री रिक्विजिट। एक तरह से आप ये समझिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, उससे पहले आप उनको एसेस करना चाहते हैं, है ना? कि जैसे खास करके मास्टर्स में जब हम क्लास लेते हैं तो हम अपनी क्लास लेने से पहले, किसी कोर्स को शुरू करने से पहले हम वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, एंड आई वांट टू एसेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी कि बैचलर्स में वो शायद वो कोर्स पढ़ कर आए। ठीक है, तो अब मुझे ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कुछ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली नोइंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो इसी तरह से मैं दोनों ग्रुप को अलग तरह से ट्रीट करता हूँ। एक ग्रुप को मैं डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, एक जो दूसरा ग्रुप है बहुत लो लेवल का क्वेश्चन रखता हूँ, एंड ग्रेजुअली वी यूज टू enhance the level of question। तो इससे फायदा ये होता है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल से you actually get to know your audience, you get to know your students actually। तो ये एक असेसमेंट
तो इसमें भी आप गूगल फॉर्म को यूज कर सकते हैं. अगेन यू कैन यूज अदर प्लेटफॉर्म एज वेल. Then there is one more type of assessment that we used to take during the course is performance based assessment tools. तो आप किसी कोई लाइव आपने सिनेरियो दिया, आप उस पर उनका अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं, खास करके जब वो प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ कोर्स है तो उनका आप प्रेजेंटेशन करवाना चाहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन है, कुछ डिजर्टेशन बेस्ड जो डिजर्टेशन है उनका आप उसका प्रेजेंटेशन करवाना चाहते हैं. सो इस तरह का आप यहाँ पर भी आप असेसमेंट टूल यूज कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच यू कैन यूज योर असेसमेंट टूल्स एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ असेसमेंट टूल्स. अच्छा, बेनिफिट्स क्या है इसके कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग असेसमेंट टूल्स, इनहांस फीडबैक फॉर बोथ इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर्स, है ना. तो दोनों को फीडबैक मिलता है, राइट. एक आपको भी समझ में आ जाता है कि भाई स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग क्या है, और स्टूडेंट को भी ये समझ में आता है. स्टूडेंट विल आल्सो गेट टू नो कि जो इफ आई एम एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इसका मतलब ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है. द टॉपिक दैट आई हैव कवर्ड ड्यूरिंग द सेमेस्टर, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें, एंड द एरिया वेयर आई एम लैकिंग. तो दोनों के लिए सो एक्चुअली असेसमेंट टूल्स प्रोवाइड विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द लर्नर एज वेल एज द इंस्ट्रक्टर्स. तो दोनों के लिए फायदेमंद है. इट इम्प्रूव्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जैसे क्लास से ले रहे हैं, सो समटाइम्स यू फील एज ए टीचर, यू फील कि स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, है ना. Students are not interested in this particular subject, right? So how to motivate them and how to engage those students in this class. तो कैसे engage करें? So these are certain tricks actually. You know, you could use these assessment tools to engage these students. कुछ आपने polling करवा दिया, कुछ आपने quiz ले लिया, कुछ उनको engage करने के लिए कुछ आपने क्वेश्चन पुट अप कर दिया. सो दैट यू कैन मोटिवेट. अच्छा, स्पेशली जब सिंस नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन कोर्सेज, राइट, and as per the suggestion of UGC that we have implemented in AMU NEP 2020, तो उसमें यह है कि अप टू 40% जो है ऑनलाइन कोर्सेज में आप मूव कर सकते हैं, राइट. एंड दे आर मूविंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स ऑनलाइन कोर्सेज. हमारे यहाँ अभी रिसेंटली स्वयं पे बहुत सारे कोर्स डेवलप हो रहे हैं, एंड वेरी सून आफ्टर 4 or 5 days almost 30 different courses would be finally developed, and that would be uploaded to Swayam portal. If you are aware of Swayam portal, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, and that is being managed by IIT चेन्नई, IIT मद्रास. तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसमें कैसे एसेस करना है. एंड वी आर आल्सो, आई एम आल्सो डेवलपिंग ए कोर्स ऑन डेटा साइंस यूजिंग पाइथन. तो ऑलमोस्ट हमारा वो कंप्लीट हो गया, तो आजकल में वो कंप्लीट हो जाएगा. तो उसमें वहां पर चैलेंजेस हैं कि कैसे स्टूडेंट को इंगेज करना इन ऑनलाइन क्लासेस. तो फिर ऑनलाइन क्लासेस में यही है कि भाई आपके पास असेसमेंट है, एक टूल है असेसमेंट, एक्चुअली मेन टूल, कि आप उससे स्टूडेंट अपनी लर्निंग खुद ब खुद जज कर सकते हैं, ठीक है. तो ऑनलाइन कोर्सेज में मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए स्टूडेंट्स का, ठीक है, बिकॉज they are not actually interacting with their mates, they are not interacting as such with the teachers, है ना. तो जो सेल्फ मोटिवेटेड है उनके लिए तो बहुत अच्छा कोर्स है ऑनलाइन कोर्सेज, दोज हु आर सेल्फ मोटिवेटेड. लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सो उनके लिए फिर एंगेजमेंट के लिए ये फिर असेसमेंट टूल्स हैं दैट वी कैन अप्लाई. So personalized learning experience as well. So using the assessment tools, स्टूडेंट अपने आप को जज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अपने अंडरस्टैंडिंग को जज कर सकते हैं, वेयर दे आर लैकिंग एंड which topic they need to go through again, so that they can understand that topic. So इस तरह से आप उसको पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है असेसमेंट टूल्स. And data-driven insight into teaching and learning effectiveness. Data-driven insights actually
जो असेसमेंट टूल के थ्रू जो डेटा जनरेट होता है, जैसे अगर आपने गूगल फॉर्म यूज किया है तो एक्सेल जनरेट फाइल जनरेट होता है, राइट? तो आप उस एक्सेल फाइल से, जैसे अभी हम लोगों ने जो हमने कहा आपको कि वीओसी में हमने 3000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम करवाया, ठीक है, वो उनका वीओसी, हम लोग वोकेशनल कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो अब वो एग्जाम दिया उन्होंने पिछले साल, तो 3000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, और हमारे पास एक्सेल फाइल है पूरा, यानी 3000 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अच्छा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चंस हैं उसमें, और हर के अगेंस्ट आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 1 पे कितने स्टूडेंट ने आंसर किया, कितने स्टूडेंट का आंसर सही हुआ, ठीक है। तो इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डेटा साइंस को यूज करके, मशीन लर्निंग को यूज करके, एआई को यूज करके हम बहुत सारा पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मतलब स्टूडेंट का ट्रेंड पता कर सकते हैं, एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन का ट्रेंड पता कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में 3000 स्टूडेंट थे, तो 3000 में से 100 ही स्टूडेंट ने लेट्स से की आंसर सही किया। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा टफ था क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन नीड टू बी नीड नॉट टू बी इन नेक्स्ट असेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को आप हटा सकते हैं, या जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा कम आंसर हुआ, इसका मतलब है कि वो टॉपिक उनको ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आया, तो फिर हम उनको टीचर्स को कह सकते हैं, वी कैन आस्क टीचर्स कि ठीक है, इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आप नेक्स्ट ये जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो स्टूडेंट की, उसकी कुछ ना कुछ आप करिए। तो इस तरह से बहुत सारा डेटा ड्रिवन इनसाइट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग असेसमेंट टूल्स। सो आई वांट टू गेट टू नो कि आप लोगों ने कुछ यूज किया हो असेसमेंट टूल्स, and if you have faced these type of challenges in taking assessments of students, कुछ, yes, any one of you, कुछ ऐसा आप लोगों ने कभी असेसमेंट लिया हो? uh, yes, if you are in this session, can we interact as far as assessment tools are concerned? जी, I can see here one profile, DBK Ranchi. So what DBK stands for? Yes, anyone? Are you interested in Moodle actually? कभी आपने अगर if you know about Moodle, so should I show you how to use Moodle and what are the different features under Moodle? Yes, sir, we would be quite interested to know about it. And as far as this assessment tools are concerned, like I have not used it, but during the COVID time, I was myself a student, so I have used to give my examinations, but not assess the students. I have just joined teaching. It's not been long. Okay, okay. So you are in AMU itself, or you are teaching No, somewhere no, else? I'm teaching somewhere else. I have completed my studies from Jamia. Okay, okay, ma'am. Okay. Yes, anyone else, if they want to put some light on assessment tools and related challenges if they have faced. So let me discuss Moodle now. So Moodle is a learning management system, right? So what is learning management system? It means where you can manage your day-to-day teaching. So manage it means if you can take classes using those platform, okay? You can upload your assignment, your lectures in that system. You can take examinations. You can conduct examinations on that system. तो ये सारा जो मिलकर है दैट वी कॉल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसमें एक से ज्यादा एक्टिविटी, अगर इफ दैट सिस्टम supports
different type of teaching and learning activities, then we call it learning management system. ऐसे बहुत सारे हैं, there are different learning management system. लेकिन जो Moodle है बहुत पॉपुलर है एंड इट इज बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड, लोग इसको यूज करते हैं और एज सच ये फ्री है, राइट? Moodle इज फ्री, बट दैट नीड टू बी होस्टेड समवेयर इन आवर सिस्टम. मान लीजिए जैसे AMU में अगर मुझे यूज करना है तो Moodle को मुझे कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा. जैसे वेबसाइट होस्ट होता है, होस्ट होने का मतलब कहीं ना कहीं सर्वर पे आप उसको इंस्टॉल करते हैं. योर देयर शुड बी सर्टेन सर्वर, यू एक्चुअली टेक स्पेस टू मेक विजिबल दोज वेबसाइट्स. तो जितने वेबसाइट है कहीं ना कहीं होस्टेड होते हैं. सिमिलरली Moodle भी एक जो प्लेटफॉर्म है दैट नीड टू बी होस्टेड. तो वो आपको होस्ट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, या आप अपना सर्वर पे होस्ट कर लीजिए. तो उसका जो कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन एज सच Moodle जो है, Moodle में को होस्ट करने में, यानी Moodle को डेवलप करने में आपको कोई खर्च नहीं होगा. Moodle ऑलरेडी है, दैट जस्ट यू नीड टू होस्ट, दैट्स इट. जैसे अगर मान लिया आपको कोई वेबसाइट बनाना है तो पहले दोनों खर्च होता है. एक तो वेबसाइट डेवलपमेंट में खर्च होगा, दूसरा होस्ट करने में भी खर्च होता है जहां पर आप उसको रन करेंगे. तो डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है, देयर इज नो सच कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एज फार एज Moodle इज कंसर्न. लेकिन दूसरा कॉस्ट है होस्टिंग के पर्पज से. ठीक. सो लेट मी शेयर Moodle साइट फर्स्ट. आई एम शेयरिंग हियर. यस. So is it visible to you? This particular that is lms.amu.ac.in. Yes, sir, it is. Okay. So it's just a AMU owned LMS, जो कि Moodle based है actually, and we are having different categories here. You can see different categories here, and you know, different faculties. Actually categories क्या, different faculties हैं, and there are certain coordinator. हम जो हैं वो faculty of science के coordinator हैं as far as learning management system is concerned. तो इस पे सबसे पहले we need to log in to the system. जैसे already मैंने log, तो ये हमारा डैशबोर्ड है. जैसे आप लॉग इन करेंगे, सो यू वुड कम टू द डैशबोर्ड डिपेंडिंग ऑन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स होते हैं. एक मेन यूजर होंगे जो एडमिन यूजर कहलाते हैं, वो असाइन करेंगे कि कौन टीचर्स हैं और कौन इंस्ट्रक्टर्स हैं. तो बहुत तरह के रोल असाइन किया जाता है. तो अब इसमें जैसे मुझे अपने फैकल्टी में जाना है, तो सो दिस इज माय ओन फैकल्टी ऑफ साइंस, and here I'm having department computer science. अब यहाँ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं. सो आई यूज्ड टू टीच साइबर सिक्योरिटी इन मास्टर्स. तो ये मैंने उस जमाने में, यानी जब कोरोना पीरियड में 21 में आई फ्लोटेड दिस कोर्स ऑन Moodle. ठीक है. उसके बाद फिजिकल क्लासेस आ गए. तो एज सच फिजिकल क्लासेस में इसको हम कभी असेसमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन और नोट शेयरिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उतना रेगुलरली अभी वी आर नॉट यूजिंग Moodle एज ऑफ नाउ वेरी रेगुलरली. हाँ, ओकेजनली यूज करते हैं, कभी असेसमेंट के लिए यूज कर लेते हैं. तो ये जैसे भी अब मैंने ओपन किया, तो ये हमारा कोर्स है पूरा. सो आई हैड टेकन ए सेशनल टेस्ट ऑन दिस Moodle. तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन था सेशनल टेस्ट का. सो यहाँ आप इंस्ट्रक्शंस है. Then there is a link. जैसे ही स्टूडेंट लॉग इन करेंगे, each student is having user ID and password. ठीक है. सबका अपना अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा इस Moodle पे एंटर करने के लिए. सो दे नीड टू हैव एन अकाउंट एक्चुअली. तो अब जैसे ही वो ओपन करेंगे तो यहाँ पर उनको लिंक दिखेगा. ठीक है. तो ये कभी अब एग्जाम हमने लिया था, तो लेट मी प्रेस दैट लिंक. तो अच्छा, इसमें खासियत ये भी है कि आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपने आप जब ओपन करते हैं गूगल क्रोम में या लेट से मोजिला, कोई सा भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, तो एक बहुत सारे मल्टीपल टैब्स हम लोग यूज कर लेते हैं. टैब ओपन करते हैं,
ठीक है। तो आप जिस टैब पे आपका मूडल ओपन है, आप ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो दूसरे टैब ओपन नहीं करे, ठीक है। तो वो टैब जो है ना, आपका मूडल का जो टैब है, दैट वुड बी लॉक्ड एंड स्टूडेंट वुड नॉट बी एबल टू ओपन अदर टैब्स, सो दैट की कॉपी कहीं से करना है, मान लीजिए कोई आंसर कहीं से देखना चाहते हैं, तो दैट वुड नॉट बी फिजिबल। तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। हाँ, उनके पास ऑप्शन ये होगा कि भाई आप मोबाइल से देख लें, वो दूसरी चीज है। लेकिन एज फार एज दैट सिस्टम इज कंसर्न, तो वो दूसरा ब्राउजर ओपन नहीं कर सकते, यानी दूसरा टैब ओपन नहीं कर सकते, देयर टैब वुड बी लॉक, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने एग्जाम ले लिया तो ये पूरा उनका फिर प्रोफाइल जनरेट होकर आया कि इन्होंने जैसे ये अदनान जफर है, सो ही हैज, अब हमने जितने क्वेश्चंस पूछे थे उसमें से इन्होंने ये रॉन्ग किया, मैंने निगेटिव मार्किंग रखा था। कुछ क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट किया, ये सारे रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो अच्छा, इसमें सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो मुझे लगा, दैट आई ऑब्जर्व, कि आप हर स्टूडेंट का ये पता कर सकते हैं कि वो कितनी देर तक उस क्वेश्चन में था, ठीक है। हाउ मच टाइम ही हैज डिवोटेड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन था, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो अब इन्होंने स्टार्ट किया 11 बजे, फिर 11:02 पे इन्होंने सेव किया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, यानी कि उन्होंने 2 मिनट उस पर लगाया, ठीक है। अच्छा, ये मैं लाइव पे चेक कर सकता हूँ, जैसे एग्जाम चल रहा है तो मैं लाइव चेक कर रहा हूँ। जब मैंने एग्जाम ये लिया था तो आई ऑब्जर्व, मुझे मालूम था कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आई ऑब्जर्व ए स्टूडेंट वाज स्टेइंग ऑन दैट क्वेश्चन फॉर ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स, जबकि उनका ये 15-20 सेकंड में हो जाना चाहिए। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने फौरन कॉल किया, हमने कहा कि भाई तुम इस क्वेश्चन पर अभी तक क्यों? तो वो कुछ करना चाह रहे होंगे, they used to discuss with their student with their batchmates। तो मैंने उसे फौरन कॉल किया, मैंने बोला तुम इस क्वेश्चन पे अभी तक क्यों? फौरन वो कि सर आप कैसे, आपको कैसे पता? तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लाइव चेक कर रहे थे हर स्टूडेंट का, कि एक स्टूडेंट कितने देर स्टे कर रहा था। मतलब अगर छोटा बैच है तो आप तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर बड़ा बैच है, मान लीजिए लेट्स से 400-500, तो उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे बैच के लिए टिल 100 कैपेसिटी के लिए तो आप ये सारा चेक कर सकते हैं। फिर इस तरह से सारा आप एक एक करके क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितना देर तक वो स्टे किया उन्होंने, एंड विच क्वेश्चन वाज करेक्ट एंड विच क्वेश्चन वाज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन, अच्छा, इसको आप फिर CSV फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह का पूरा इंफॉर्मेशन, इट एक्चुअली समराइजेज द होल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर फाइनली उसने मुझे चार्ट बोर्ड भी बना सकते हैं यहाँ, कि कितना पार्टिसिपेंट्स ने कितना मार्क्स अर्न किया। तो सबसे ज्यादा मार्क्स जो था वो 17 पार्टिसिपेंट्स, वो इस रेंज में थे, 9.62 से लेकर 11.54, इस रेंज के बीच में थे। तो इस तरह का बहुत सारा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं एज फार एज मूडल असेसमेंट इज कंसर्न। इसी तरह मूडल में आई हैव गिवन वन असाइनमेंट एज वेल, ये तो सेशनल था। इसी तरह आप असाइनमेंट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी बच्चे असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं यूजिंग मूडल। तो यहाँ पर जैसे है ना कि आउट ऑफ 50 कितना ग्रेड अर्न हुआ, तो जैसे ये ईशा अग्रवाल हैं, तो ईशा अग्रवाल ने जो सबमिट किया उनका असाइनमेंट हम चेक कर सकते हैं, किस डेट पे सबमिट किया, किस टाइम पे सबमिट किया। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आई कैन कलेक्ट यूजिंग मूडल, ठीक है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन, द सेम टाइप ऑफ डेटा यू कैन कलेक्ट यूजिंग गूगल फॉर्म एज वेल, लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइसेस ज्यादा हैं, ठीक है। एंड यू आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस एज ए होल इन सिंगल विंडो। तो आपके पास सारा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज ए होल, है ना। सो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं दैट इफ यू हैव एनी अकाउंट इन मॉडल देन यू कैन एक्सप्लोर इट। फिर उसके अलावा फिर यहाँ पर हमने असाइनमेंट, सॉरी, लेक्चर अपना अपलोड किया। सो दीज आर माय लेक्चर्स दैट आई अपलोडेड ऑन डिफरेंट यूनिट्स। ये सारे जो जो मैंने अपलोड किया। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी सेट कर सकते हैं, सॉरी, कि यू वांट टू मेक एश्योर कि, या आप ये इस तरह से आप समझिए कि
आप अगर आपको ये देखना है कि बच्चे ने सारे असाइनमेंट चेक कर लिया कि सॉरी सारे लेक्चर उसने रीड किया है कि नहीं, नॉट रीड मतलब वेदर ही हैज विजिटेड दैट लेक्चर और नॉट, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि पहले यूनिट का एक बार में भेजे, जब वो आपने देखा कि उसने एक्सेस कर लिया तब फिर नेक्स्ट यूनिट का है। इस तरह से आप पूरा सेट कर सकते हैं मॉडल में, ठीक है। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि वेदर स्टूडेंट हैज विजिटेड ऑल द लेक्चर्स और नॉट, सो ऑल दैट यू कैन सेट इन Moodle platform. So that was all about Moodle. I'm not going in depth of Moodle since you might not have, some of you might not have a account in Moodle, right? So let me stop here. Yes. Do you have any question related to Moodle or something else till now? Up. Yes, sir. I wanted to ask if a student has turned in any answer, like say for question one, he has turned in option A, and later on he realizes that the correct option was C. So can they switch the answer, or and we will get to know about it or not? No, that option is available. It depends on how teachers has set that option. अगर उन्होंने अलाउ करना है कि भाई पीछे आकर भी, जैसे होता है जनरली ना, जैसे अगर आप फिजिकल एग्जाम में देखें, सो सपोज लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 1 पे सी उन्होंने चेक किया, later on he observed that answer is not right, so that moment of time he or she can correct his or her answer. तो सिमिलरली वी कैन सेट दीज ऑप्शन इन मॉडल एज वेल। आप इसको सेट कर सकते हैं कि ये हम लोग तो गूगल फॉर्म में भी सेट करते हैं कि बाद में अगर वो उसको रेक्टिफाई करना है तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो मॉडल में है ये ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। ओके, थैंक यू। Yes, any one of you other than Tuba, so or do you have any question, कुछ queries हैं that you want to discuss? The next I would discuss Google Form, ठीक है। कुछ उसके जो options हैं that we will discuss. There are certain option, जैसे एक option है Google Form में, I'm not sure whether you have used it or not. जैसे हम लोग यूज करते हैं ना कि अगर जो मान लीजिए कि जैसे नेट वगैरह में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, कि अब ये आता है कि जैसे एक पहला अपने जो एग्जाम है, अगर वो क्वालिफाई किया तभी दूसरा चेक होगा। सपोज कि कुछ ऐसा एग्जाम आप लेना चाहते हैं कि देयर आर 2 डिफरेंट सेक्शंस, तो वन सेक्शन जो है उसमें जो अगर आंसर राइट होगा, देन ओनली you would allow a student to sit on section 2, otherwise they would exit from the section 1। यानी अगर वो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर दैट टेस्ट, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं इन गूगल फॉर्म। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो दैट यू कैन परफॉर्म इन गूगल फॉर्म। सो वी विल डिस्कस आफ्टर दिस डिस्कशन ऑन मूडल। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं, सो शुड आई मूव टू गूगल फॉर्म और do you have any query questions? Let me share the PPT now. So I'm sharing my PPT, so Windows, yeah. So we had seen benefits of using assessment tools. Now we'll see the options that are available in Google Forms. So you most of you actually are aware of Google Forms, and most of you have used Google Forms, right? So how to create a Google Form, that we'll discuss. Okay. So and I'm in assumption that you are aware of creating Google Form. Then how to add sections and logic in Google Form. So logic इसका मतलब यही है कि एक सेक्शन है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो स्टूडेंट है वो नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जाए बल्कि एग्जिट पे हो जाए, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट अगर किसी सेक्शन से पहले आपको सेट करना, सो दैट यू कैन सेट। हाउ टू क्रिएट a क्यूज on Google Forms, that we'll see. How to change the design of Google Form, तो बहुत सारे उसके टेम्पलेट्स हैं,
लुक एंड फील आप उसको चेंज, आप गूगल फॉर्म का चेंज कर सकते हैं. सो हाउ टू क्रिएट ए गूगल फॉर्म टेम्पलेट, आप टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. हाउ टू शेयर एंड कोलैबोरेट ऑन गूगल फॉर्म्स, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं. लेट्स से यू हैव क्रिएटेड ए गूगल फॉर्म and you can share this Google form to other collaborators as well. अब वो collaborators आप उसमें edit कर सकते हैं, that they can edit in those questions as well, है ना. और सिर्फ वो उसको view कर सकते हैं, तो वो आप decide कर सकते हैं कि collaborator जो है वो आप उसको honor भी बना सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, लेट्स से कि I want to take online exam of let's say current batch. तो मैंने अपने स्कॉलर को कहा कि भाई थोड़ा सा एक टेम्पलेट बना लो सिर्फ. ठीक है, उन्होंने टेम्पलेट बनाया और लेट्स से कि 20 क्वेश्चंस का टेम्पलेट बना लो. उन्होंने पूरा टेम्पलेट बनाया एंड ही हैज शेयर दैट गूगल फॉर्म एज ए कोलैबोरेटर, और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑनर बना दिया. अब वो टेम्पलेट बन चुका है, अब वो उससे मैं सिर्फ क्वेश्चन पुट अप करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, सो दैट वी कैन share and collaborate Google Forms. How to access Google Form responses, responses आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, responses को Excel फाइल में रीड कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं. एंड देयर आर सर्टेन Google Form ads on. ठीक है, एड ऑन्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि अटेंडेंस आपको लेना है गूगल फॉर्म में, है ना. And there's several add-ons that you can add in your Google form. लेकिन obviously जब वो आप ऐड करेंगे तो वो थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं, और बहुत सारे वो आपसे एक्सेस लेना चाहेंगे. ठीक है, तो वहां पर आपको चेक करना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस दे वांट टू टेक. तो सबको अलाउ नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर कुड बी मालवेयर, है ना. तो इसलिए सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकता है. सो वो जो ऑथेंटिक हैं उसको आपको देखना चाहिए. सो दैट विल सी. नाउ आई एम स्विचिंग टू Google form on how to create a simple queues that we'll discuss. So I'm sharing here Google form link. Just not Google form link, I'm opening Google form. So yes, so this is the link of Google form, right? And here you are having certain templates, blank queues, exit ticket, worksheet and blank form. तो इसको हम लोग यूज करते हैं. सो अगर आपको कोई एग्जाम करवाना है तो सो they can select blank form or assessment template as well. अब यहाँ पर लेट्स से कि सो दिस अनटाइटल्ड फॉर्म जो यहाँ पर आप इसको हम लिख देते हैं, लेट्स से कि assessment of assessment of फर्स्ट यूनिट, लेट्स से. ठीक है, देन ये डिस्क्रिप्शन होगा, आप उसको कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो दिस टेस्ट इज meant for PG student, right? PG students. Then you add different क्वेश्चंस here. यहाँ पर आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना, है ना, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो सो यू कैन ऐड फर्स्ट नेम एंड दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड. ठीक है, तो शॉर्ट आंसर होगा क्योंकि आप उससे नाम पूछना चाह रहे हैं. एंड यू कैन ऐड डिफरेंट अदर डिटेल एज वेल. फर्स्ट नेम हो गया, देन मोबाइल नंबर. ठीक है, ये भी शॉर्ट आंसर है, एंड दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड फील्ड. ठीक है, इसके बाद आफ्टर दैट यू वांट टू स्टार्ट द क्यूज, राइट? सो आई वुड ऐड ए सेपरेट सेक्शन हियर. ठीक है, ऐड सेक्शन में यहाँ ऑप्शन है ऐड सेक्शन. अब यहां से हम लिखेंगे कि प्री रिक्विजिट, ठीक है, या प्री टेस्ट. तो प्री टेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये सही होगा तभी वो नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे स्टूडेंट, अदरवाइज दे वुड डायरेक्टली एग्जिट फ्रॉम दिस ऑप्शन. अब यहाँ पर मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एंड लेट्स से
who was the first education minister of India, right? So, sorry, this is actually section. I need to add questions actually. ठीक है, ये तो सेक्शन का डिस्क्रिप्शन है, तो ये प्री टेस्ट है, ये दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड पंडित नेहरू, देन मौलाना आजाद, देन सरदार पटेल, सरदार पटेल एंड लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री. तो ये ऑप्शन है. अच्छा, इसमें हम लोग अब इसका रिक्वायर्ड है, सो दिस इज द मैंडेटरी क्वेश्चन. सो रिक्वायर्ड को चेक करेंगे एंड यस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन ऐड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चेक बॉक्सेस हैं, ये क्या है, ये सारा आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. एंड यू कैन मेक डुप्लीकेट एज वेल. अगर सेम क्वेश्चन को सिर्फ हमने डुप्लीकेट किया, यहाँ पर कुछ और ऐड कर देंगे. हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. So in this way you can add different questions or different सेक्शन है. ये सेक्शन में जैसे अब यहाँ पर सेक्शन मैंने प्री टेस्ट का सेक्शन बनाया है, लेट्स से कि इस पे मैंने रखा, यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर. तब ये अगर ये सेक्शन का आंसर सही होगा तभी वो दूसरे सेक्शन में जाएंगे. तो एक सेक्शन और ऐड कर लेते हैं. लेट्स से कि दिस इज थर्ड सेक्शन, और इसमें जो है यस, इसको मैंने यहाँ रखा हुआ था फर्स्ट होम मिनिस्टर, वो मैंने थर्ड सेक्शन में रखा है, ठीक है. तो यहाँ से आने के बाद देन ओनली लेट मी ऐड दिस वन, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर. सो अब मुझे मालूम हुआ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो आई नो मौलाना आजाद, राइट. तो कंटिन्यू टू गो टू सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है. सो एंड देयर इज अदरवाइज, ये क्या होगा, जो गलत आंसर होगा तो उस डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सबमिट फॉर्म में चले जाएंगे, यानी डायरेक्ट उससे हम एग्जिट करवा देंगे. सो सबमिट फॉर्म एंड देयर इज वन मोर. तो ये इस तरह से हमने सेट किया है. लेट मी दिस वन. सो आई एम प्रेसिंग सम नेम हियर, just XYZ, mobile number, then was the first education minister, let's say Sardar Patel. So it has directly moved to submit to finish, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये आंसर गलत था, और इसको अगर हम लेट्स से अगर सही देते हैं मौलाना आजाद, देन नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट सेक्शन आया, ठीक है. तो इस तरह से आप सेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि एक सेक्शन के बाद आप डायरेक्टली वेदर दिस सेक्शन वुड बी आंसर बाय स्टूडेंट और नॉट. तो प्री, जो एक तरह से प्री टेस्ट की तरह आप अगर उसको बनाना चाहते हैं, सो इन दैट केस, अच्छा यहाँ पे बहुत कुछ हम सेट कर सकते हैं. वी कैन हैव, अच्छा इसको शेयर करना हो तो क्या करते हैं, सो दिस देयर इज अ प्रीव्यू, सो दिस इज द लिंक. तो ये बहुत बड़ा लिंक होता है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लिंक, इसको भी आप अगर करेंगे, सो एनीवन कैन यूज दिस लिंक टू अपीयर ऑन ए क्यूज, ठीक है. अब इसके अलावा अगर आपको छोटा लिंक देना है, देन यू कैन राइट हियर सेंड में जाएं ऑप्शन में, एंड हियर यू कैन क्लिक दिस लिंक एंड देन शॉर्टन यूआरएल. अब ये आपका एक छोटा सा यूआरएल ये बन जाएगा, इसको आप शेयर कर सकते हैं. सो यू कैन शेयर दिस लिंक टू योर स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द टेस्ट.
तो ये लिंक जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिंक बनाते हैं, यूज टू क्रिएट ए शॉर्ट एंड यूआरएल। अब इसमें इसके अलावा देयर आर सेवरल सेटिंग। अभी तो सिंपल सा भी हमने बनाया है, सो देयर आर सर्टेन सेटिंग एज वेल। एक तो रिस्पॉन्स है, जब वो रिस्पॉन्स इस तरह से हम रीड कर सकते हैं, जब वो मान लीजिए कि अब यहाँ पर आपको सेट करना है कि वेदर दैट लिंक, जैसे आपने रखा कि ये 10 मिनट के लिए अवेलेबल रहेगा, दैट्स इट। तो आप इसको 10 मिनट के बाद एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स जो है क्लोज कर देंगे, तो अब कोई स्टूडेंट अपीयर नहीं हो सकते। तो ये आपको चेक रखना पड़ेगा, तभी ये वो स्टूडेंट अपीयर होंगे, राइट। बाद सिंस देयर इज नो सच रिस्पॉन्सेज, तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है डाउनलोड करने के लिए। अगर कुछ रिस्पॉन्स होगा तो यहाँ पर अलाउ करेगा। मैं कुछ बेसिक सेटिंग्स यहाँ चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको मेक दिस एक क्यूज, मैं इसको क्यूज बनाना चाहता हूँ। तो क्यूज में क्या होगा कि कुछ पॉइंट वैल्यूज होंगे, ठीक है। देन यू कैन असाइन सर्टेन पॉइंट वैल्यूज, 1 नंबर 2 नंबर रखना है। सो अब ये मैंने ये कर दिया कि ये एक क्यूज है, ठीक है। अच्छा, रिलीज ग्रेड कब रिलीज करना चाहते हैं ये डिसाइड करना है ना, कि जैसे ही स्टूडेंट अपीयर हो गया उसके बाद फॉरन ग्रेड रिलीज कर दें आफ्टर ईच सबमिशन। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह से क्यूज ले रहे हैं, तो वो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब हम असेसमेंट लेते हैं स्टूडेंट में, तो हम फॉरन रिलीज नहीं करना चाहते हैं इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, एक ने सबमिट कर दिया, वो ग्रेड उसे पता चल गया, तो वो दूसरे को शेयर करेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि लेटर ऑन आफ्टर मैनुअल रिव्यू आई वांट टू रिलीज द स्कोर, ठीक है। No, there is an important logged mode that I was discussing in Moodle. तो ये log mode क्या करता है अगेन, कि वो दूसरा टैब ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर ओपन करेंगे तो टीचर को मेल जाएगा, ठीक है, कि दैट स्टूडेंट ट्राइंग टू ओपन द न्यू टैब। सो आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तभी चेक होता है जब आपके पास एजुकेशनल इसका सब्सक्रिप्शन हो गूगल का, ठीक है। जैसे अभी एजुकेशनल सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आई कैन नॉट चेक दिस ऑप्शन, ठीक है। तो इसको हम नहीं यूज कर सकते। लेकिन हाँ, एजुकेशनल अगर सब्सक्रिप्शन है गूगल का, देन यू कैन यूज दिस लॉक मोड। देन मिस्ड क्वेश्चंस पे क्या है कि अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन जो रिस्पॉन्ड ने जो पार्टिसिपेंट थे या स्टूडेंट थे, कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत किया, सो दे कैन व्यू। अगर इसको मैं नहीं अगर अनचेक करता हूं तो दे कैन नॉट व्यू कि कौन सा आंसर गलत हुआ उनका। इसी तरह से कौन सा आंसर सही हुआ, इफ दे वांट टू नो, देन यू नीड टू चेक दिस वन, ठीक है। फिर पॉइंट वैल्यूज है, टोटल पॉइंट उनका कितना आया फॉर ईच क्वेश्चन, सो दे कैन आल्सो चेक कि पॉइंट वैल्यूज कितना है। तो अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो उनको पॉइंट वैल्यू पता नहीं चलेगा। डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं 1 पॉइंट, राइट। सो यू कैन चेक दिस वन, तो डिफॉल्ट पॉइंट वैल्यूज होगा। मैनेज हाउ रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पर कुछ आपको सेटिंग है यहाँ पे कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर हम लोग अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि डू नॉट कलेक्ट वेरीफाइड रिस्पॉन्डर इनपुट, तो रिस्पॉन्डर, तो अब जैसे मैं जनरली जब हम लोग फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट का, तो वी डू नॉट कलेक्ट द ईमेल आईडी, राइट, एंड इट शुड नॉट बी कलेक्टेड, राइट। ईमेल शुड नॉट बी कलेक्टेड इन केस ऑफ फीडबैक, कि अब स्टूडेंट एक्चुअली फिर वहां पर उनका अपना रिस्पांस होता है। अगर हम वो कलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर लुकिंग ऑन देयर हु आर गिविंग दिस रिस्पॉन्सेज, तो इसलिए वहां पर हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, डू नॉट कलेक्ट, वेरीफाइड, रिस्पॉन्डर इनपुट। अब या तो आप जो रिस्पॉन्डर है वो इनपुट करें, तो इस तरह से यू कैन सेट दिस ऑप्शन। सेंड रिस्पॉन्डर ए कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, तो व्हेन रिक्वेस्टेड ऑलवेज ऑफ, तो वो ये भी आप सेट कर सकते हो। व्हेन रिक्वेस्टेड का मतलब है वहां पर उनको एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही वो चेक करेंगे तो आपके पास मेल आएगा, तो फिर आप उसका रिलीज करेंगे। सो वहां पर ये ऑप्शंस हैं अवेलेबल। ऑफ का मतलब है कि यहीं आप रिस्पॉन्स शेयर नहीं करना चाहते हैं। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, रिस्पॉन्स कैन बी चेंज आफ्टर सबमिटिंग। तो अब ये आप इसको चाहते हैं कि जैसे मान ली सबमिट करने के बाद ही, लेट्स से कि 1 घंटे का पेपर था
और बच्चे ने आधे घंटे में वो पेपर कर लिया। अब उसे लगा कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है। सो अगर उसको वो दोबारा से चेंज करना चाहता है, सो यू कैन अलाउ दिस टाइप ऑफ, इफ यू वांट टू अलाउ दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, देन यू नीड टू चेक इट। अच्छा, अब ये दूसरा है कि रिक्वायर्स टू रिस्ट्रिक्टेड टू यूजर्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी जीमेल का अकाउंट देती है सारे ही बच्चों को, जितने भी जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनका अपना अकाउंट देती है वो। तो उस केस में अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ एमयू डोमेन से ही बच्चे अपीयर हो, देन वी कैन रिस्ट्रिक्ट, राइट। अदरवाइज तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर लेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तब देन यू कैन चेक दिस वन। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, है ना। अगर आप लिमिट करना चाहते हैं कि एक ही रिस्पॉन्स हो, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज नहीं हो, है ना, देन वी नीड टू चेक दिस वन। मल्टीपल सिंगल रिस्पॉन्स के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन देयर इज ऑप्शन मैनेज हाउ द फॉर्म एंड रिस्पॉन्सेज आर प्रेजेंटेड। तो इसके अंदर में बहुत सारा ऑप्शंस हैं। शो प्रोग्रेस बार, तो आपको क्या होगा जब आप यानी स्टूडेंट गूगल फॉर्म पे एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको प्रोग्रेस बार दिखेगा कि जैसे एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर मान ली मल्टीपल सेक्शंस हैं, एक प्रोग्रेस बार नीचे शो हो रहा होगा, सो दैट वुड बी विजिबल टू स्टूडेंट्स। तो ये आप इसको चेक कर दें। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इट मीन्स कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो हर को अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलर, नॉट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि जो इनके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरे स्टूडेंट के पास कोई और क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये है शफल होंगे क्वेश्चंस। तो इसको हम लोग जनरली जब हम एग्जाम लेते हैं तो उसको चेक कर देते हैं। अब इसमें आप जैसे ही अगर उन्होंने सबमिट किया तो अगर आपको एक तो ये होगा कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड वंस स्टूडेंट हैज सबमिटेड हिज गूगल फॉर्म, so a message would be displayed, your response has been recorded। तो ये तो डिफॉल्ट मैसेज होगा, you can edit this message, right, and like your message has been recorded and very soon you will get the score। इस तरह से अगर आप इसको मैसेज करना, so you can write here your response has been recorded and score would be released on, let's say, 10th of March, ठीक है। तो आप इसको ये मैसेज दे सकते हैं, है ना। देन शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अगर एक ही रिस्पॉन्स में आपने चेक कर रखा है तो तब तो आप ये इसको नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही सेट कर रखा है कि लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, नाउ आई कैन चेक दिस ऑप्शन, शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, यहाँ पर है, ठीक है। तो एक से ज्यादा रिस्पॉन्स वो सबमिट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको कलेक्ट करना चाहते हैं। देन देयर इज वन ऑप्शन व्यू रिजल्ट समरी, शेयर रिजल्ट। अगर रिजल्ट समरी शेयर करना चाहते हैं सो आप इसको चेक करेंगे। अब उसमें होगा कि कितना क्वेश्चन उन्होंने सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। सो सारा इंफॉर्मेशन वहां पर होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पोंडेंट्स। तो ऑटो सेव नहीं होगा बल्कि स्टूडेंट को सेव करना पड़ेगा। तो रिस्पोंडेंट अगर वो मैंने ये चेक कर रखा है डिसेबल है अभी फिलहाल, तो ऑटो सेव नहीं होगा बल्कि स्टूडेंट को खुद सेव करना पड़ेगा। तो अगर टाइम मान लीजिए कि सपोज 10 मिनट्स का था, मैंने क्वेश्चन सेट कर रखा था कि 10 मिनट्स में ये सबमिट हो जाना चाहिए, और या लेट्स से कि मैंने यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज हैं यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो फिर क्या होगा? सो उस केस में अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑटो सेव नहीं होगा, ये डिसेबल है। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ताकि अगर मैं वहां से क्लोज कर दूं तो ये ऑटो सेव हो जाए। जो उन्होंने जितना भी क्वेश्चन चेक किया था वो होगा, बाकी का आगे का नहीं होगा, तो ऑटो सेव उतना तक हो जाए। सो लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि रिस्पोंडेंट विल लूज देयर प्रोग्रेस इफ देयर ब्राउजर क्लोजेस और रिफ्रेशेस। अगर उसको रिफ्रेश कर दिया ब्राउजर को या क्लोज कर दिया तो फिर सारा उनका
जो उन्होंने अभी तक किया है, दैट वुड बी लॉस्ट। देन डिफॉल्ट है कुछ यहाँ पर, फॉर्म डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। सो कलेक्ट ईमेल बाय डिफॉल्ट अगर आप करना चाहते हैं, डू नॉट कलेक्ट रिस्पॉन्डर इनपुट्स, तो यही जो ऑप्शंस हैं। क्वेश्चंस डिफॉल्ट, मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, यानी ये मैंडेटरी होगा, सारा मैंडेटरी होगा, ठीक है। ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको मैंने वो भी दिखाया था कि जब क्वेश्चन हम सेट कर रहे थे वहां पर भी ऑप्शन था, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने चेक किया, इसका मतलब है ये मास्टर सेटिंग है। सो दैट वुड बी चेक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सॉरी नॉट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के लिए सेट होगा। फिर यहाँ पर है टाइटल फॉर्म, आप इसको नेम कुछ नाम दे सकते हैं, असेसमेंट टेस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, ये नाम इसका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं, जो भी आपका एक्चुअली जो ये सेव हो रहा है ना, ये गूगल ड्राइव में आपका सेव होता है, तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि वेयर यू वांट टू सेव दिस गूगल फॉर्म इन योर गूगल ड्राइव। अब जैसे हमारे गूगल ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर्स है, ठीक है, लाइक क्लासरूम है और पाइथन के कुछ फोल्डर्स हैं, सो आई कैन सेव एनीवेयर। तो वो डिपेंड करता है कि आप सेव कहाँ करना चाहिए। लेट्स से कि आई वांट टू मूव इट टू क्लासरूम, ठीक है। सो लेट मी चेक दिस वन, यस, गूगल क्लाउड। तो ये यहाँ पर जाकर अब वो उस गूगल क्लाउड फोल्डर में सेव हुआ है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है दैट यू कैन एक्सप्लोर एंड इट हैज हैंग्ड, ये भी हैंग हो रहा है हमारा सिस्टम, यस। सो ये सेटिंग है दैट यू कैन एक्सप्लोर। अब यहाँ पर कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं आप, थीम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि हेडर में जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट किस तरह से हो, है ना। कुछ कलर आप चेंज कर सकते हैं, दैट यू कैन कस्टमाइज। अब ये कलर चेंज हो रहा है, ये दैट यू कैन सी, ये डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक, सो दैट यू कैन सेलेक्ट। हेडर में कुछ आपको इमेज अगर आप चाहते हैं, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर, यहाँ पर इमेज आप लगा सकते हैं हेडर में आपका। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हेडर में आप एक बैकग्राउंड में इमेज आप लगा सकते हैं, दैट यू कैन इंक्लूड सर्टेन इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं कोलैबोरेटर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर ऐड कोलैबोरेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐड कोलैबोरेटर, इसी को मैं किसी और को कोलैबोरेटर बना सकता हूँ, ठीक है। सो जैसे अभी मैंने लेट्स से कि आई एम मेकिंग ए कोलैबोरेटर एज, लेट्स से आई हैव वन मोर अकाउंट एंड हियर मैं हियर आई कैन ऐड कि यहाँ इन्हें मैं एडिटर बना रहा हूँ, ठीक है। एडिटर का मतलब है नो दिस पर्सन कैन ऑल्सो एडिट दिस क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा अकाउंट है एक्चुअली, जिस अकाउंट से मैं अभी बना रहा हूँ। ये गूगल का अभी हमारे पास 3 अकाउंट है। एक तो अकाउंट जो कि यूनिवर्सिटी ने हमें प्रोवाइड किया है, एंड 2 अकाउंट्स आई एम हैविंग पर्सनल अकाउंट। तो ये मैंने दूसरे अकाउंट को शेयर किया, तो अब ये उसको एडिट कर सकते हैं। सो एडिटर विल बी एबल टू व्यू एंड डिलीट फॉर्म रिस्पॉन्सेज, तो वो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो दे विल गेट द नोटिफिकेशन, शेयर एनीवे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि फैसल अनवर डॉट JMI एक्चुअली इज एक्सटर्नल टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये एंड आई टोल्ड कि शेयर एनीवे, राइट। सो दैट एक्सेस हैज बीन अपडेटेड, तो ये ऑप्शन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड सर्टेन एड-ऑन्स, आप एड-ऑन्स ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे एड-ऑन्स यहाँ पे मिलेगा, जैसे है ना, ये सारे एड-ऑन्स हैं दैट यू कैन। अच्छा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, लेट्स से कि अटेंडेंस, अटेंडेंस ट्रैकर, तो ये बहुत सारे हैं एड-ऑन। फॉर्मेटिक है, कोई सा भी आप सर्टिफिकेट मेकर है, एंड देन ये क्यूज मेकर, लेट्स से। तो अब यहाँ पर मुझे
अच्छा, since I am not able to select, install, since I am using my AMU account to create this Google form, ठीक है, तो अब ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने ये सेट कर रखा है कि हम एड ऑन्स ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, ये इसलिए भी हमने पहले भी कहा था कि एड ऑन्स जो हैं देयर कुड बी सर्टेन मैलवेयर एज वेल, इसलिए वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, इट हैज बीन रिटन हियर, दिस एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर इसको मैं अगर पर्सनल गूगल मेल से अगर इसको ऐड ऑन करता तो ये हो जाता, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपके सिस्टम पे, आपके पर्सनल अकाउंट पे ये ऐड ऑन इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन सिंस आई एम यूजिंग माय यूनिवर्सिटी जीमेल आईडी, सो दे आर नॉट अलाउइंग अस टू add ons, ठीक है। So these are certain options. Then there are certain keyboard shortcuts as well, कुछ आप उसको सेट कर सकते हैं यहाँ पर, मूव कर्सर ऑन, मूव कर्सर डाउन एंड सो ऑन। कुछ फाइल कमांड्स हैं उसके लिए आप सेट कर सकते हैं, मेनूज के लिए है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैट यू कैन सेट इट हियर। एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड सो ऑन। देन ऐड ऑन है कस्टमाइज। अच्छा, ये प्रीव्यू है, अगर आपको अपना चेक करना है कि जो आपने क्वेश्चन बनाया तो उसको आप आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप उसको चेक करना चाहते हैं वेदर दैट असेसमेंट क्वेश्चंस आर राइट और नॉट, और लुक एंड फील किस तरह से है, ठीक है, और हेडर्स एंड क्वेश्चंस किस तरह से सेट है, सो दैट यू कैन यूज थ्रू प्रीव्यू, राइट। ये अब आप यहाँ पर यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चन। यही मैं प्रोग्रेस बार कह रहा था कि सो दिस वन इज द प्रोग्रेस बार, राइट। देन देयर आर सर्टेन मोर ऑप्शंस हियर। यस, सेंड में ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि जो सपोज कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनको यहाँ मेल कर सकते हैं कि टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। और सिमिलरली यू कैन शेयर द लिंक एज वेल। जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन हियर, दैट इज एम्बेड एचटीएमएल। एम्बेड एचटीएमएल का मतलब ये होता है कि सपोज यू हैव योर ओन पर्सनल वेबसाइट, तो आप इस लिंक को, जो एम्बेड एचटीएमएल है, इसको कॉपी करके आप अपने इसको फ्रंट एंड पेज पे एचटीएमएल के फॉर्मेट में अगर इसको इंक्लूड कर देंगे तो आपके पर्सनल वेबसाइट में ये लिंक विजिबल होगा। सो एनीवन कैन कम एंड क्लिक ऑन दिस लिंक एंड दे कैन डायरेक्टली अपीयर ऑन द क्यूज और टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह का भी ऑप्शन अवेलेबल है इन गूगल फॉर्म, ठीक है। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देयर आर सर्टेन अदर स्क्रिप्ट एडिटर है। अगर कुछ आपको लैंग्वेज का नॉलेज है, कुछ प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, देन यू कैन ऐड सेवरल स्क्रिप्ट एज वेल। कुछ आप स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किस तरह के यूजर को अलाउ करना, किस तरह के यूजर को अलाउ नहीं करना। सो यू कैन राइट स्क्रिप्ट हियर if you are having knowledge of any languages such as C, C++, Java, तो जावा का आप कोड यहाँ लिख सकते हैं। सो इट इज अलाउइंग यू टू ऐड डिफरेंट फंक्शनलिटी हियर। तो खैर मैं इसको आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस। So these are certain options which are available that you can explore. अच्छा, questions जो हैं, there are different type of questions, right? So this one is a multiple choice question. You can change it to drop down. अब ये ड्रॉप डाउन होगा, आपको जब आप क्लिक करेंगे तो एक जो एक ड्रॉप डाउन आप देखेंगे दैट यू कैन, जैसे ड्रॉप डाउन किसको कहेंगे हम। सो लेट्स सी, आई एम प्रेसिंग दिस वन and I'm filling this basic information here. Next, sorry, record, and then next. तो यहाँ पर who was, so this one is the drop down, ठीक है। ये drop down जो आपका आ रहा है, so you can collect, you can check this one. Let's say then this one,
ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद लीनियर है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है। ये आप मल्टीपल चॉइस ग्रिड आप जब एक साथ बहुत सारे ऑप्शन को एक साथ, लेट्स से कि देयर सर्टेन मल्टीपल क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर ये एक रो के लिए है, सो दिस ऑप्शन इज फॉर रो 1। इसी तरह दूसरे रो के लिए होगा, फिर थर्ड रो के लिए होगा आप, ठीक है। तो मल्टीपल क्वेश्चन एक ग्रिड बन जाएगा ये। तो एक ही पे अगर जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसको सेट किया था कि एक सेमेस्टर में लेट्स से देयर आर 5 कोर्सेज, ठीक है, एंड ईच एंड एवरी कोर्स हैज 5 डिफरेंट क्वेश्चंस। जो स्टूडेंट्स हम फीडबैक ले रहे थे, तो स्टूडेंट के पास यहाँ पर पहला कोर्स 1 होगा, कोर्स 1, फिर उसके अगेंस्ट ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर होगा कि सॉरी, दिस इज कोर्स 1, एंड देयर वुड बी ऑप्शन कि कोर्स 1 का जो वेदर syllabus of course 1 has been completed or not, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा कोर्स का भी होगा, कोर्स 2, ठीक है, एंड देन देयर इज वन मोर कोर्स 3। अब यहाँ पर ऑप्शन होगा कि 50% कंप्लीट हुआ, 50% कंप्लीटेड, ठीक है, 100% completed and completed, not completed at all, and partially, you could say, let's say, not, do not want to answer, let's say, do not want to answer. So these options you can set, ठीक है। चलिए इसको फिर इसको रिफ्रेश, अच्छा ये रिफ्रेश करने से वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। So I'm refreshing this link and then giving the mobile number here and first name, next. So you can see here एक साथ सारे क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन एक साथ हैं, तो ये 50% है। देन सिलेबस ऑफ 2 नॉट कंप्लीटेड एट ऑल। तो एक साथ आप मल्टीपल ऑप्शन सेट कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड, सिमिलरली चेक बॉक्स ग्रिड आप बना सकते हैं, है ना, एंड यू कैन सेट द टाइमर एज वेल। तो so let's say this one, actually this is not set, yes, और आप डेट भी सेट कर सकते हैं कि कुछ डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, so that you can set in your Google form. Then description include time, yes, include time, include date and month and so on. So ये बहुत सारे options हैं that you can explore in your Google form, ठीक है। I hope it is no sufficient as far as Google form and other Moodle is concerned, other learning management is concerned. Let me share the PPT. So let me check whether something has been left or not. So we discussed different options of Google Forms. Yes. So thank you so much. If you have any question and if you want to discuss something related to assessment, then I'm open to answer those questions. Yes, any one of you. Yes, sir. I wanted to ask that there is option to log if a student can visit multiple tabs while filling the Google Forms. So is it only for visiting multiple tabs, or it can also check if the student is visiting another browser? It won't check another browser. Actually, it would check the single browser. ठीक है, सिंगल ब्राउजर में मल्टीपल टैब्स चेक करता है। अच्छा, आप इस तरह समझिए कि सपोज you are organizing a
proctored ऑनलाइन एग्जाम होता है, जैसे गेट वेट का होता है एग्जाम, ठीक है, दे एक्चुअली अलाउ proctored ऑनलाइन एग्जाम. So in that case, you are giving them a machine. So in that machine, you can set this type of options. लेकिन जब आप open environment में, that would be a quite challenging task to restrict student and users to open other browser. तो वहां पर restrict करने में, वो जहां proctored एग्जाम है, proctored ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, जैसे स्वयं का भी हम लोग का ये Okay. proctored ऑनलाइन एग्जाम होता है, वहां पर आप कर सकते हैं चेक. Okay, thank you. Yes, is there any more question that we can discuss? Yes, any one of you? Yes, I can see certain faces here. Anam, Aziz Khan, and then yes, ma'am, do you have any question? So are you using these type of assessment tools in your day-to-day teaching or day-to-day assessment? Yes, any one of you? Where you are teaching to these days? So I'm teaching in an ICSE affiliated high school. Okay, okay. So there you are using certain tools or any? No, so far we have not introduced any such things, but we are looking forward if it is feasible, because it depends upon the environment we are in. We as teachers can use it, but it's not feasible for all the students. They don't have Yes, yes. access. Yes, it's very right. So I think I should stop now. So thank you so much for joining this session, and it was a pleasure for me to interact with teachers with such an august audience. So you can ask any question later on as well. My profile is there in AMU website. So you can contact me. I am LMS coordinator here. I am NEP coordinator, assistant coordinator of NEP as well, National Education Policy. And I delivered several lectures across India as far as NEP is concerned. So if you have any doubt, any question, so later on you can also ask. So thank you so much. So I'm exiting from this window.